So, welcome back. Now, in the last turn, I discussed the method of electrostatic induction, right? What were the induced charges and what were inducing charges? On last turn, this uh, topic that was covered on previous turn. Okay. Now, in this lecture, we are moving forward with the topic charging of two spheres by induction. Charging of two, in this word is important, two metal spheres by induction. So what we have to do, we have to take two metal spheres first. First, we are going to take two metal spheres, right? And that is the most important thing. This will be, this will be insulated. Okay, this metal sphere will be insulated. Fine, it must not be grounded. Okay, there must be no connection between ground and this metal sphere. Keep in mind. So this is insulated. Second, again, this is insulated, right? This is again insulated. Fine. Now, charging of two metal spheres by induction. So first of all, what we are going to do here, we on first part, we are keeping these two spheres in contact, right? This is in contact. Fine. Okay, up to this point there is nothing to clarify, and there is nothing important. So these are two metal spheres first. Okay, now the next important step is, because we have to induce charges, okay na? Charging of two metal spheres, and mind one thing, there is another way to ask the same question, that what is the method to induce two opposite charges, to induce the opposite charges in two metal spheres. This can also be asked कि क्या मेथड है कि आप दो मेटल स्फीयर्स में अपोजिट चार्जेस इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, सो बोथ द वेज it may be asked, so you have to be ready for that. Now the second thing, this is your second question. Now bring a positively charged glass rod. This is positively charged glass rod, positively charged glass rod. Okay, now you are keeping close to these two metal spheres. Okay, fine. ये आपका मेटल स्फीयर आ गया, यहाँ आपने क्लोजली इसको प्लेस कर दिया, राइट? ये यहाँ पर रख दीजिए और ये इनको इंसुलेट कर दीजिए. नाउ दिस इज फिगर नंबर 2, याद रखिएगा. ओके, वी हैव टू कीप इन माइंड. सो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द phenomenon? What will happen here? So because this is positively charged glass rod, it will induce negative charge. Where? In this part of the sphere. Because on the previous lecture we have already discussed that at the closer end to this positively charge, opposite charge will be induced, and the end that is away from this positively charged rod, opposite charge, same charge will be induced. So certainly there will be induction of positively charged. This is the thing we have covered already. So two things we are very much sure, that here because of positive charge, here negative charge is being induced, and here it will be positively charged. Fine. Now how
this portion here it is negative charge. Negative charge यानी कि if this is positively charged, so negative charge and electrons will come closer to this positively because of force of attraction. They starts moving यानी कि this portion will be richer in electrons, negatively charged particle. यहाँ पे आपके negatively charged particle आ जाएंगे. तो ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा. इलेक्ट्रॉन डेफिसिट का मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज होगा. फाइन. अब क्वेश्चन ये आता है नाउ कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे या कुछ बाकी रह जाएंगे. दिस इज द मेन क्वेश्चन. क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे या कुछ बाकी रहेंगे. नो, सारे के सारे नहीं होंगे. एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगी. दैट इज डिपेंडिंग ऑन दैट पॉजिटिवली चार्ज. एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगी यानी कि जब ये और इलेक्ट्रॉन इधर से आने लगेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब इकट्ठा हो जाएंगे. तो अगला इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या करेगा वो, इस इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. बिकॉज सेम चार्ज रिपेल इच अदर. ठीक है. तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगी, और एक इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाएगी तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगी. और यहाँ इस कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज यूज हो जाएगा एंड इस कॉर्नर पर पॉजिटिव चार्ज यूज होगा. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है थर्ड पार्ट. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों स्फीयर्स को अलग कर देंगे. ठीक, अलग करेंगे, लेकिन अभी इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो ग्लास रॉड को जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसको आप यहीं पर अभी रहने दीजिए, यानी कि क्लोजर टू नेगेटिवली चार्ज्ड, यहाँ पे रहने दीजिए. ठीक, ठीक है ना. अब क्या करते हैं कि इस स्फीयर को अलग कर देते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं. ठीक है, अलग कर दिया. तो एक बात तय मान लीजिए, बिकॉज ये वाली पॉजिटिवली चार्ज आपकी फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करके रखेगा. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फिक्स रहेंगे, ये वैसे ही रहेंगे. ठीक है. आपने क्या किया कि आपने इसको मूव कर दिया. तो जब आपने मूव कर दिया तो अब चार्ज इसके अलग हो जाएगा, है ना. अब ये पॉजिटिव चार्ज लेकर अलग चला जाएगा. ठीक है. तो ये यहाँ पे अभी रुके रहेंगे, अब इसको आपने अलग कर दिया. ठीक है. ये कंडीशन आपकी आ गई. ठीक. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. चार्ज अभी खत्म नहीं होगा, चार्ज अभी इंड्यूस रहेगा. ठीक है. नाउ फोर्थ पिक्चर क्या कहता है. फोर्थ में अब हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिवली चार्ज को भी हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं. तो जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे, अब क्या होगा, नाउ देयर विल बी द मूवमेंट और रीशफल. यहाँ बोलेंगे रीशफल ऑफ चार्जेस होंगे. और अब तो ये ऐसे हो गए, इस कंडीशन में आ गई. जिन नेगेटिव चार्जेस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव चार्जेस ने रोक रखा था, अब वो तो अलग चले गए दूर. अब यहाँ बचा क्या, तो इनके पास नेगेटिव चार्ज बचा, इनके पास पॉजिटिव चार्ज बचा. ठीक है. सो देयर विल बी अ रीशफल ऑफ चार्ज. और रीशफल ऑफ चार्ज जब होगी तो ये नेगेटिव चार्ज जो उस लेफ्ट एंड पर था, वो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो इस तरफ था, वो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ आ जाएंगे. फाइन. कोई डाउट नहीं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ एट लास्ट व्हाट विल हैपन. अब हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं. जब आप इन दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा तो अब इसकी रीशफलिंग ऑफ चार्ज होगी, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड आपका नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया कि दो मेटल स्फीयर लेकर
और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर और पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर और आपने दोनों मेटल स्फीयर्स में अपोजिट चार्जेस इंड्यूस कर दिया, अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो गया। ठीक है, यही आप नेगेटिव साथ, अगर नेगेटिव आप कर देते तो ये पॉजिटिव आता और ये नेगेटिव आता। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर अपोजिट दो मेटल स्फीयर्स में अपोजिट चार्जेस हमें इंड्यूस करने हैं तो इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। फाइन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बोलिए, अगर और कोई डाउट हो तो आप यू मे राइट कमेंट बॉक्स। ओके, सो वी विल मूव फर्दर on another topic, right? So welcome once again. Now the next thing, how can we charge a metal sphere positively without touching it? This is the question. एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है and that is very important कि जिस ग्लास रॉड से आपने चार्ज को इंड्यूस किया, यानी कि इंडक्शन ऑफ चार्ज टुक प्लेस, तो ग्लास रॉड पे चार्ज का लॉस होगा क्या? होगा? नहीं। जवाब देंगे नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। अगर कॉन्टैक्ट से होती है तो उस कंडीशन में आपके चार्ज की लॉस होगी, अगर कॉन्टैक्ट से होगी। अगर कॉन्टैक्ट से आप चार्जिंग करेंगे तो उस कंडीशन में आपके चार्ज की लॉस हो सकती है, होगी। लेकिन जब आप चार्ज बाय इंडक्शन करेंगे, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इट मींस जो आपका ग्लास का रॉड था दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज, उसकी किसी चार्ज की लॉस नहीं होगी, उसकी किसी चार्ज की लॉस नहीं होगी। वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, नाउ हाउ कैन वी चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? ओके फाइन, सो इट्स नॉट अगेन अ बिग डील। क्या करेंगे? एक मेटल स्फीयर लेंगे, ले लिया आपने, उसको इंसुलेटेड बना देंगे, यानी कि इंसुलेट कर देंगे। इंसुलेट करेंगे मतलब देयर मस्ट नॉट बी एनी कांटेक्ट विद द ग्राउंड, अदरवाइज सारा का सारा चार्ज नीचे जमीन में चला जाएगा। फाइन, नाउ आपको क्या करना है? आपको दो चीजें हो सकती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या तो नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज आपको इसको बनाना है तो इसका मतलब कि आपको जो चार्ज लेकर आना होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, यानी कि दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना, आप अपने पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए। ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल इंड्यूस, कौन से चार्ज यहाँ इंड्यूस करेगा? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस कर देगा। फाइन, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अब फिर आप याद कीजिए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के पहले टॉपिक को और पहले अपनी लेक्चर को। तो वहां पर क्या था कि क्लोजर एंड पर इसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ था, और जो दूसरा एंड था जो कि अवे था, इससे अवे था, उस एंड पर क्या था? सेम चार्ज इंड्यूस हुआ था। राइट, तो अगर हम यहां देखें तो ये वाला इसके क्लोजर है, यानी कि इट विल इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज हियर एंड नेगेटिव चार्ज हियर। फाइन, ये आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ओके, इट्स नॉट बिग डील, इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं ये कि आपने पॉजिटिवली चार्ज इसको करनी है विदाउट टचिंग, यानी कि इसको टच भी नहीं करना है और पॉजिटिव चार्ज यूज करनी है। अब तो ये नेगेटिव आ गया, क्या करोगे आप? है ना, इस नेगेटिव को दूर करने के लिए आपके पास क्या रास्ता बचता है, क्या करोगे आप? है ना, तो इस नेगेटिव को दूर करने के लिए हमारे पास एक और रास्ता है, हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। किसको? अब ये आपका फर्स्ट सेकंड फिगर, हमने सेकंड में क्या किया कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी था, ठीक, और ये आपका चार्ज बॉडी है। फाइन, इंसुलेटेड हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके फाइन, पॉजिटिव चार्ज। राइट, अब क्या होगा कि हमने इसको जाके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इस वाले पोर्शन को, जो पोर्शन अवे था उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो जितनी भी चार्ज यहाँ पर होगी वो क्या होगा? ग्राउंड में चला जाएगा। फाइन, और जब ये ग्राउंड में चला जाएगा, नाउ द थर्ड थिंग व्हाट वी विल डू,
थर्ड थिंग में हम क्या करेंगे, अब हमारे क्या चाहिए, हमारे को पॉजिटिवली चार्ज चाहिए, ठीक। तो अब ये नेगेटिव जो चार्ज था उसको हमने उस पोर्शन को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, तो वहां से हमारा ये ग्राउंड में चला गया, ये नहीं जाएगा बिकॉज देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिवली चार्ज वहीं पर रहेंगे, यानी कि देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये टिके रहेंगे, ये नेगेटिव और ये इतना ये पोर्शन पॉजिटिव चार्ज टिका रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज आपका ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये क्यों रुक गया, तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ना। अब हम इसको ग्राउंड से हटा देते हैं, यानी कि जो आपने मेटल स्फीयर की जो कनेक्शन की हुई थी उसका हम ग्राउंड से हटा देते हैं। तो जब आप ग्राउंड से हटा दीजिएगा तो अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, फाइन। फाइनली क्या करेंगे आप, तो फाइनली हम क्या करते हैं कि हमारे को क्या चाहिए, हमारे को तो पूरे पर मेटल स्फीयर पर पूरा पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब क्या करते हैं, अब इन भाई साहब को कहते हैं अब आप जाओ, आपका काम हो गया, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। सो नाउ द फोर्थ थिंग इज, जैसे ही हम इसको हटा देंगे यहाँ से नेगेटिव चार्ज को, जैसे ही हटा देंगे अब क्या होगा, ये आप पॉजिटिव चार्ज आपके पूरे मेटल सरफेस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका क्या होगा, आपकी बॉडी जो मेटल स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, आपने टच भी नहीं किया और नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आप नेगेटिवली चार्ज करो, तो जब अगर नेगेटिवली चार्ज मुझे इसको बनाना होगा क्या करेंगे, आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करनी होगी, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसमें जो इंडक्शन होगा दैट विल बी नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव अगर हमने तैयार करना था तो नेगेटिव चार्ज लेकर आए, और अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है इसके पास लेकर आएंगे, वो उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द चार्जेस। अब चार्जेस की बात करते हैं, चार्जेस पर आते हैं। ओके, सो वी आर मूविंग फर्दर। तो यहाँ सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है ना, कि ये हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ग्राउंड करने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज कोई भी लेकर आ सकते हैं आप, ये प्लास्टिक रॉड भी है, दिस इज प्लास्टिक रॉड है ना, प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज, तो आप इसको कहीं से भी, मतलब प्लास्टिक को भी आप रब करके और इस नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकते हैं। सो अल्टीमेट क्या है कि आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आनी है, जो कि प्रीवियस सेक्शन में आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रब कर दें तो हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बहुतों के दिमाग में बात होती है कि फिजिक्स इज़ वेरी टफ। नहीं, फिजिक्स जो है बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हाइपोथेटिकल नहीं है। यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा हुआ है राइट फ्रॉम क्लास 6, 7, 8, 9 में, 10th में, 11th में, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो प्रीवियस क्लासेस में जितना कोई कुछ पढ़ा हुआ है उन्हीं सारे कंसेप्ट्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और अगर आप पुरानी चीज़ों को वन बाय वन अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे आप, तो आपको फिजिक्स में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर रटने का नहीं है ना, यहाँ पर रटने का भी नहीं है, डरने का भी नहीं है ना। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बुलाए तब भी जाने का नहीं, है ना। तो उसी तरीके से फिजिक्स डराए अगर कोई तो डरने का नहीं, डरने का तो बिल्कुल है ही, इसको समझने का है और सीखने का है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हाइपोथेटिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में चलता रहता है। बस एक चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखना है कि एक तो सारी चीज़ों को अरेंज करके चलना है, एंड सेकंड थिंग थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज़ आपको यहाँ आना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है और मैथमेटिक्स में आपका मन लगता है, दिल लगता है, मैथमेटिक्स ठीक है, तो आपको फिर से बहुत मज़ा आता है। तो अब बात ये क्वेश्चन आती है कि भाई जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, तो नहीं, बायो के स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी बहुत आसानी से करते हैं, बिकॉज 10th तक तो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 10th तक तो मैथमेटिक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। और जो यहाँ पर एडिशनल चीज़ें यूज़ होती हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक, कुछ एरिया है ना,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर मैथमेटिक्स मेरे पास नहीं है तो मुझे फिजिक्स नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो थोड़ी सी समझदारी अगर हम यूज कर लें तो डरने का नहीं, सीखने का, है ना। ओके, नाउ अब हम आगे मूव करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर चलते हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम मूव करेंगे फिर कूलॉम्स लॉ पर। वेरी सिंपल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना। सबसे पहला आपको याद रखना है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है ना। सबसे पहले आप याद रखिएगा एडिटिविटी, एडिटिविटी, है ना, कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिविटी याद रखिएगा, एडिटिविटी यानी कि अगर आपके पास 10 चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज 1 कूलम का है, दूसरा -2 कूलम का है, चौथा 3 कूलम का है और तीसरा आपका 2 कूलम का है, तो सबको हम जोड़ देंगे, है ना। जो पॉजिटिव का है पॉजिटिव साइन के साथ, जो नेगेटिव है नेगेटिव साइन के साथ, और टोटल का सम निकाल लेंगे तो हमारे को टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो चार्जेस, तो पहला ये शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको, फर्स्ट इज एडिटिविटी एंड सेकेंड मतलब कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एंड सेकेंड है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में आता है कि क्वांटाइजेशन में आता है कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, क्वांटाइज्ड होते हैं। यानी कि जितने भी आपके चार्जेस होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर होंगे, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा कंप्लीट नंबर होगा आपका, होल नंबर होगा आपका, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा, 100 इलेक्ट्रॉन होगा, 200 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, दिस इज क्वांटाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी भी 7.5 नहीं हो सकता, जब भी जाएगा तो 7 ही जाएगा या 8 ही जाएगा। एंड फाइनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, सॉरी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मतलब इसको हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन हम क्रिएट नहीं कर सकते और इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पे हम कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जब क्वेश्चन आती है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन आपको मालूम है, कंजर्वेशन आपका हो गया। एडिटिव को मैं आपको समझा देता हूँ मैं कि व्हाट इज एडिटिविटी, यानी कि अगर Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, Q2 इज 3 माइक्रोकूलम, Q3 is 4 microcoulomb, Q4 is -4 microcoulomb and Q5 is -1 microcoulomb। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज होगा हमारा that will be equal to Q1 plus Q2 and plus Q3 and Q4 and plus Q5, है ना, तीनों। तो अब क्या होंगे 2 and plus 3 plus 4 -4 and -1, और माइक्रोकूलम सबके साथ है, आप लोगों को मालूम है ना 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं, तो 10⁻⁻6 कूलम, याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। सो 1 माइक्रोकूलम इज 10⁻⁻6 कूलम। सो व्हाट इज, सो 3 to 5 and 5 4 9, 9 minus 5 and this is equal to 4 microcoulomb. So this is called additivity, है ना। So charges are additive in nature, okay। Now नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं हम। सेकंड वाली पॉइंट को भी हम डिस्कस कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है।